Good morning, students. Welcome to English class. So, my name is Andani Mittal, and today we will study our first chapter, that is landscape. So, there are 10 activities in this chapter, but today we will try to cover 3 or 4 activities in this video. So, let's start our chapter and be concentrated. So, first of all, what is the meaning of landscape? Do you know what is the meaning of landscape? Landscape क्या है, आप लोग जानते हो? Okay, I'll tell you what is landscape. Landscape means a beautiful artistic painting of a land. जो पेंटिंग जिसमें लैंड को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हो, नेचुरली डिस्क्राइब किया हो, उस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? हम लैंडस्केप बोलते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्टिविटी. First, water dance is a poetic introduction to one of nature's most basic elements, water. Okay, so water dance एक पोएम है. सी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, यानी कि वाटर डांस एक पोएटिक इंट्रोडक्शन यानी कि एक पोएम है टू वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट बेसिक एलिमेंट, वाटर, जिसमें वाटर एक मोस्ट बेसिक एलिमेंट है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको वेरियस फॉर्म्स में बताया गया है. ठीक है. सो we all know that there are many basic forms of nature like water, air, fire. They are all basic elements of nature, but water is most important element and it is very much needed for our life to enhance. Okay, so Kanu Patel draws a vivid picture of this element, a gentle mountain pond to raging waterfall. तो कनु पटेल कौन है? कनु पटेल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन पेंटिंग किया हुआ है और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था. उसमें उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था डिप्लोमा पेंटिंग में. तो उन्होंने ये पिक्चर बनाई है लैंडस्केप. तो ये कनु पटेल है, ये वाटर को डिफरेंट फॉर्म्स में हमें बताएंगे कि वाटर किन किन फॉर्म्स में होता है और वो क्या क्या फॉर्म्स लेता है और ये पॉन्ड से लेके वाटरफॉल तक कैसे पहुंचता है, वो सब हमें बताएंगे पोएम के थ्रू. तो अवर पोएम क्या है? वाटर डांस इज़ अवर पोएम. सो हियर इज़ कनु पटेल्स पेंटिंग. सो यू ऑल कैन सी दिस पेंटिंग. सी, this is our painting, and what do you see in this picture? Describe it at least in 5 sentences. So we all can see the painting, and in that we can see that there are many students. See, there are many students. There are many trees here. See, and it is a monsoon season because it is raining. So, and there is a yellow umbrella over here. See, and there is a black car in the painting. This all I have written which I can see in this picture. Okay, if you are seeing any other things then you can write by your own self, but for your hint you can write this answer so that you can see many other things also in this picture. Okay, so this was our first activity. You all understood? यानी कि क्या है, वाटर डांस में वाटर के डिफरेंट एलिमेंट्स को या वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स को हमें बताया है. और ये लैंडस्केप किसने बनाया है? ये पेंटिंग किसने बनाई है? कनु पटेल ने. और इसके आंसर में हमें क्या लिखना है कि ये पिक्चर में हम क्या क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या क्या देख पा रहे हैं, वो हमें नोट करना है. ठीक है. सो यू ऑल हैव टू राइट दिस आंसर इन योर फेयर बुक वन टाइम. So now let's move on to another activity, that is activity 2, water dance part 1. water dance poem का part 1 है. So let's start. Some people say that I am one thing. Some people say that I am one thing. Others say that I am many. Ever since the world began, I have been moving in endless circles. सो क्या सीखा हमने, क्या जाना फर्स्ट पैराग्राफ से कि सम पीपल से दैट, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एक हूँ, कुछ कैसे मैं ज़्यादा हूँ. तो जब से वर्ल्ड बिगेन हुआ तब से मैं एक एंडलेस सर्कल में मूव करता हूँ. एंड समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई. कभी कभी मैं स्काई से नीचे गिरता हूँ. देन उस टाइम में क्या होता हूँ? आई एम द रेन. ओके,
So now let's move on to another. Sometimes I cascade, I tumble down over the moss covered rocks through the forest shadows. Okay, तो कभी कभी मैं कैस्केड बन जाता हूँ, यानी कि सीरीज ऑफ वाटरफॉल. सी आई हैव रिटन मीनिंग फॉर यू. कैस्केड मीन्स सीरीज ऑफ वाटरफॉल. एक ही सीरीज में जब बहुत सारा पानी ऐसे ऐसे करके आता है, ये माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा होता है कि एक दो वाटरफॉल्स एक ही साथ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स. आई टम्बल डाउन मीन्स, टम्बल मीन्स रोल, यानी कि ऐसे ऐसे करके नीचे आता है. मैं क्या आता हूँ? सीरीज ऑफ वाटरफॉल बन के नीचे आता हूँ. ओवर द मोस कवर्ड रॉक्स. और किसके ऊपर गिरता हूँ? मोस कवर्ड रॉक्स, यानी कि ऐसे रॉक्स होते हैं, सी रॉक्स होते हैं ना ऐसे, उसके ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस ऐसा बन जाता है जब बहुत सारा पानी गिरता है तब. इसे लील बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लील बोलते हैं. तो उसके ऊपर से भी मैं गिरता हूँ. ओवर द मोस कवर्ड रॉक्स मीनिंग कि स्टोन्स के ऊपर जो लील जमी होती है उसके ऊपर से भी मैं आता हूँ. और समटाइम्स थ्रू द फॉरेस्ट शैडोज. कभी कभी क्या होता है? फॉरेस्ट के शैडोज़ में भी मैं आ जाता हूँ. फॉरेस्ट के अंदर से भी मैं आ जाता हूँ, यानी कि यहाँ से जब वैलीज फ्लो होती है तो क्या होता है? ये वाटर फ्लो वहाँ से आता है. तो एट दैट टाइम आई एम ए माउंटेन स्ट्रीम. उस टाइम में क्या बन जाता हूँ? माउंटेन स्ट्रीम, यानी कि यू कैन सी द स्ट्रीम हियर. सी माउंटेन के बीच में से जो जगह होती है वहाँ से वाटर फ्लो होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम. यानी कि स्मॉल रिवर लाइक फ्लो, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं. तो कभी कभी मैं कैस्केड बन जाता हूँ, तो कभी नीचे गिरता हूँ, मॉस कवर्ड रॉक्स के ऊपर से गिरता हूँ, तो कभी फॉरेस्ट के शैडोज़ की थ्रू से निकलता हूँ, बीच में से निकलता हूँ. तो तब मैं क्या बन जाता हूँ? माउंटेन स्ट्रीम. नाउ नेक्स्ट. At the foot of the mountains, I leap from a stone cliff, spiraling, plunging. I am a waterfall. क्या है कि माउंटेन्स, फुट ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि ये जो हमें दिख रहा है माउंटेन्स का नीचे का हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं? फुट ऑफ द माउंटेन्स. आई लीप फ्रॉम द स्टोन क्लिफ, यानी कि ये स्टोन्स होते हैं ऐसे, वहाँ ऊपर की ओर से नीचे आते हैं. ठीक है, ये क्लिफ बोला जाता है, वहाँ से नीचे आते हैं. स्पाइरलिंग, यानी कि कौन शेप में मैं नीचे आ जाता हूँ. ठीक है. प्लंजिंग मतलब ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो एकदम फोर्सफुली गिरता है, फोर्सफुली पुश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लंजिंग. एट दैट टाइम मैं क्या हूँ? वाटरफॉल हूँ. ठीक है. माउंटेन्स के फुट से और स्टोन क्लिफ के ऊपर से कौन शेप में और फोर्सफुली नीचे गिरता हूँ, तब मैं क्या बन जाता हूँ? waterfall. Now next. In the shadows of mountain, I am still and deep. I fill and overflow. I am the lake. यानी कि कुछ माउंटेन्स के शैडोज़ में मैं बहुत शांति से ऐसे पड़ा हुआ होता हूँ और बहुत डीप गहरा होता हूँ, और कभी कभी मैं भर जाता हूँ तो कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता हूँ. तो तब मैं क्या बन जाता हूँ? एक लेक बन जाता हूँ. क्या बन जाता हूँ? लेक, यानी कि झील, छोटा तालाब, उसे क्या बोलते हैं? तालाब. तो तब मैं क्या हूँ? लेक हूँ. नाउ नेक्स्ट. I wind through broad golden valleys, joined by streams, joined by creeks. I grow ever wider, broader and deeper. I am the river. कभी कभी क्या होता है? आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज. इसे हम वैलीज भी बोल सकते हैं. दो माउंटेन्स के बीच में जो स्पेस होती है, कभी बड़ी होती है कभी बहुत छोटी होती है, वहाँ से जो वाटर फ्लोज होता है उसे हम वैलीज बोलते हैं. तो ये वैलीज, छोटी छोटी वैलीज जब कनेक्ट होके क्या बन जाती है? बड़ी सी रिवर बन जाती है. क्या बन जाती है? बड़ी सी रिवर. क्रिक यानी फ्लोइंग भी बोल सकते हैं. हाँ, तो कभी वाइडर बन जाती है, कभी डीपर बन जाती है. तो तब मैं क्या हूँ? रिवर हूँ. जो छोटी छोटी वैलीज जोड़ के बनती है उसे क्या बोलते हैं? रिवर बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट. आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड्स, लिविंग द लैंड behind
cooler silver moonlight. So I pass through gateway means मैं गेट के जैसे में से पास हो जाता हूँ, जैसे गेट में से कोई पास हो जाता है वैसे भी मैं भी गेटवे से पास हो जाता हूँ. ऑफ हाई स्टोन्स पैलिसेड. पैलिसेड का मतलब क्या होता है? स्टोन बाउंड्रीज. क्या होता है? स्टोन बाउंड्रीज. यू कैन ऑल्सो राइट मीनिंग स्टोन बाउंड्रीज. ओके, राइट इट. पैलिसेड का मतलब स्टोन बाउंड्रीज होता है. तो कभी कभी मैं स्टोन बाउंड्रीज मतलब कि ये जो बहुत ऊंचे स्टोन के पहाड़ होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके कहीं क्लिफ्स होती है, तो यहाँ ये स्टोन की बाउंड्री बन गई. क्या बन गई? ये सारी स्टोन की बाउंड्री बन गई. तो वहाँ से मैं नीचे गिरता हूँ. क्या करता हूँ? नीचे गिरता हूँ. ये स्टोन की बाउंड्री में से इनमें नीचे गिरता हूँ और ज़मीन के कुछ हिस्सों को मैं पीछे छोड़ देता हूँ. सी लिविंग द लैंड बिहाइंड. तो ये गेट स्टोन के गेटवे से मैं नीचे होकर ज़मीन के कुछ हिस्से को पीछे छोड़ देता हूँ. कूल सिल्वर मूनलाइट. तो क्या होता है? मूनलाइट के जैसे चमकता हूँ. नाउ स्पार्कल्स एंड डांसेस. क्या करता हूँ? मैं चमकता हूँ और डांस करता हूँ. ऑन माई वेव्स. मैं अपनी वेव्स में डांस करता हूँ. सी ऐसे ऐसे होता है ना वेव्स, वैसे मैं डांस करता हूँ. तो उस टाइम मैं क्या बन जाता हूँ? आई एम द सी. क्या बन जाता हूँ? आई एम द सी. नाउ नेक्स्ट, drawn upward by warm sunlight in white silver veils, I rise into the air, I disappear. See, drawn मतलब drawn means pulled. What is the meaning of drawn? Drawn means pulled. Pulled upward. मुझे कोई खींचता है ऊपर की ओर. वो कौन खींचता है? by warm sunlight. थोड़ी गर्म धूप मुझे अपनी ओर ऊपर खींचती है. इन वाइट सिल्वर वेल्स. ये आसमान के सिल्वर पर्दे से मैं ऊपर की ओर खींचा चला जाता हूँ. आई राइज इनटू द एयर. और मैं हवा में चला जाता हूँ. तब मैं डिसअपियर हो जाता हूँ, यानी कि गुम हो जाता हूँ. सो दिस वॉज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम वाटर डांस पार्ट 1. सो वाटर डांस का पहला फॉर्म क्या था? तो आवर फर्स्ट फॉर्म वॉज वाटर इन द फॉर्म ऑफ rain, and second is water in the form of mountain stream. Third, water in the form of waterfall. Fourth, water in the form of lake. Fifth, water in the form of river. Okay, now water in the form of sea. See here, water in the form of sea. And lastly it goes into the sky and it gets disappears. So there were, which were the forms? Rain, mountain stream, waterfall, lake, river and sea. There were 6 forms of water. Okay, so do you understood the poem? If you have any doubt, then WhatsApp me. Okay, so now let's move on to activity 3. See, what is the activity? How is the river different from the sea? कि river sea से किस तरह अलग होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो sea एक ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर है, बहुत बड़ी है. तो river क्या है? लॉन्ग है. ये बहुत बड़ी है तो ये लॉन्ग है. और थिन है. sea कैसी है? बहुत थिक होती है, यानी कि बहुत पौड़ी, बहुत क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉड होती है. और ये रिवर क्या होती है? थिन होती है, नैरो होती है. और सी सॉल्ट वाटर बॉडी है जिसमें बहुत सॉल्टी वाटर है, हम पी नहीं सकते. तो रिवर में फ्रेश वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अवर एक्टिविटी 3. Now let's move on to activity 4. And our activity 4 is water dance part 2. So let's start. I am the mist
In the thousands of shape I reappear. High above the earth, in the blue sky, I float, I drift. I am the cloud. See, I am the mist. Mist meaning very fine droplets of water. What is the meaning of mist? Very fine droplets of water, and in simple language we can also tell the simple form of fog. ओके, सो आई एम द मिस्ट. मैं क्या हूँ? एक फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हूँ. इन थाउजेंड्स ऑफ शेप आई रीअपियर. मैं बहुत सारे शेप्स में होता हूँ. हाई अबाउट द अर्थ इन द ब्लू स्काई. और मैं कहाँ होता हूँ? अर्थ से बहुत हाई यानी कि ब्लू स्काई में. आई फ्लोट, वहाँ मैं फ्लोट करता हूँ. एंड आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करता हूँ. तो मैं क्या हूँ? क्लाउड हूँ. मैं क्या हूँ? क्लाउड हूँ यानी कि बादल हूँ. Carried by the winds from distant sea, I move, growing heavier, growing darker, returning. I am storm front. अब जब मुझे विंड्स यानी कि बहुत तेज़ हवा मुझे खींच के सी में से खींच के ले जाती है, तब मैं बहुत हैवी बन जाता हूँ और डार्कर बन जाता हूँ. तब मैं वापस आता हूँ तो मैं क्या बन जाता हूँ? स्टॉर्म फ्रंट. स्टॉर्म फ्रंट मीनिंग तूफान से आने के पहले की हवा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉर्म फ्रंट. हम बोलते हैं ना कि आज तूफान आने वाला है, तो वो हम किस तरीके से बोलते हैं? जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती है स्टॉर्म फ्रंट जैसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म फ्रंट. तूफान से पहले की हवा को हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म फ्रंट. सो नाउ नेक्स्ट. एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन आई राइज अप एज ग्लीमिंग पावर फिल्ड टावर्स. इन द डार्कन्ड स्काई आई एम थंडर हेड. तो अब क्या होता है कि वॉल्स ऑफ द माउंटेन आई राइज अप. माउंटेन्स के वॉल से मैं ऊपर की ओर जाता हूँ. जैसे पावर फिल्ड टावर्स यानी कि डार्क लाइट. बिजली कैसी होती है? डार्क होती है और लाइटनिंग वाली होती है. इन द डार्क एंड स्काई यानी कि मैं स्काई, डार्क स्काई में चली जाती हूँ. तब मैं क्या बन जाती हूँ? आई एम अ थंडर हेड, बिग क्लाउड फॉर्म बिफोर स्टॉर्म. यानी कि तूफान से पहले जो बादल बन जाते, काले बादल, घने बादल, उसे हम क्या बोलते हैं? थंडर हेड. यानी कि उसके तूफान के पहले की जो बिजली और काले बादल छा जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थंडर हेड. तो क्या माउंटेन के ऊपर राइज होता हूँ, लाइट वाला होता हूँ, डार्क होता हूँ, और स्काई में, डार्क स्काई में लाइट होता हूँ और बिग क्लाउड्स फॉर्म करता हूँ. तो मैं क्या हूँ? एक थंडर हेड हूँ. Now next, I blind the sky with lightning, the earth trembles with my thunder, I rage, I drench the mountain's side, I am the storm. See, now जब मैं लाइट करता हूँ तो स्काई कैसे ब्लाइंड बन जाती है और अर्थ ट्रेम्बल यानी कि शिवर करता है मेरे थंडर से. तो मैं रेज, आई रेज यानी कि मैं वायलेंट बन जाता हूँ, हार्म बन जाता हूँ. आई ड्रेंच द माउंटेन साइड यानी कि मैं सब माउंटेन साइड को ड्रेंच यानी कि गुस्से में भिगा देता हूँ. तो तब मैं क्या बन जाता हूँ? स्टॉर्म बन जाता हूँ. सी, ऊपर वाला क्या था? बिफोर स्टॉर्म के सिचुएशन थे और अब क्या आ गया? फाइनली स्टॉर्म है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. Storms come, storms pass. I am countless droplets of rain left floating in the silent air. I reflect all the colors of sunlight. I am the रेनबो. अब क्या है कि स्टॉर्म्स आ गया, स्टॉर्म्स चला गया और छोटे छोटे बारिश के ड्रॉपलेट्स, बूंदें बरसती है, तो मैं साइलेंट हवा में गिरता हूँ. आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट. तब मैं सनलाइट के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता हूँ स्काई में. तब मैं क्या बन जाता हूँ? रेनबो. आई एम अ रेनबो. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट. आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग्स, आई एम वाटर. नाउ सी, आई एम वन थिंग कि मैं एक ही चीज़ हूँ पर मैं कहीं सारे फॉर्म्स में हूँ. यानी कि आई एम मैनी थिंग्स, सो आई एम अ वाटर. दिस इज़ माई डांस थ्रू द वर्ल्ड. और ये मेरा डांस है जो मैं वर्ल्ड को बता रहा हूँ कि वाटर कितने फॉर्म्स में है वो हमें पता चल गया. सो वाटर एक ही चीज़ है, एक ही थिंग है, पर उसके कहीं सारे फॉर्म्स है, जैसे कि थंडर हेड, सी, लेक, रिवर, storm. Okay, understood the poem? And this poem is written by
Thomas Locker. Understood? So this was our activity 4, and that's all for today. And your homework is you have to write down all the meanings which are here given in the glossary, and also which all meanings I have wrote here. See, like I have noted for you. This all the meanings throughout the chapter you have to write in your notebook, and also you have to write the activities which I have written in this chapter. All you have to write one time in your fair book, and I will check this fair book when school reopens. Till then, see you. Bye. Take care.